صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ صدیوں سے انبیاء نے بنی نوع انسان کو ایک عظیم آزمائش سے خبردار کیا۔ ایک دن نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی اور دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا، میں تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو اس سے آگاہ نہ کیا ہو، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو خبردار کیا، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں گا جو کسی نبی نے اپنی امت کو مجھ سے پہلے نہیں بتائی۔ جان لو کہ وہ کانا ہے اور اللہ کانا نہیں ہے۔ کسی نبی نے بھی اس تنبیہ کو نظر انداز نہیں کیا۔ نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیغام ہمیشہ ایک ہی رہا، بنی نوع انسان پر ایک عظیم آزمائش آئے گی، ایسی سخت آزمائش کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو حکم دیا کہ اپنی نمازوں میں اس سے پناہ مانگے۔ لیکن دجال دراصل ہے کیا؟ کیا یہ ایک کانا عفریت ہے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے؟ یہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ لفظ دجال عربی میں ایک طاقتور معنی رکھتا ہے۔ یہ اس شخص کی طرف اشارہ کرتا ہے جو حق کو باطل سے چھپائے، ایک فریبی جو بظاہر نیک لگے لیکن اندر سے فساد پھیلاتا ہو۔ قدیم عربی لغت میں بھی وضاحت ہے کہ یہ لفظ نہ صرف ایک فرد پر بلکہ ایک گروہ پر بھی لاگو ہو سکتا ہے، ایک ایسی قوم جو خود کو روشن خیال، قابل اعتماد بلکہ اخلاقی بھی پیش کرے لیکن حق کے بھیس میں گمراہی پھیلاتی ہو۔ پس دجال کی پیشین گوئی محض ایک انسان کا بیان نہیں، یہ دھوکے کے ایک دور کا بیان ہے، ایک گروہ، ایک نظام، ایک ایسا دور جہاں باطل قابل یقین لگے۔ ہمارے زمانے میں دھوکہ ایسے طریقوں سے پھیلتا ہے جو پہلی نسلیں سوچ بھی نہیں سکتی تھیں۔ میڈیا اور مصنوعی ذہانت کے ذریعے دھوکہ اتنا قائل کن بنایا جا سکتا ہے کہ خود حق کو پہچاننا مشکل ہو جائے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ شیطان نے مہلت مانگی۔ شیطان اکیلا کام نہیں کرتا، وہ نظاموں کے ذریعے، نظریات کے ذریعے، طاقتور اداروں کے ذریعے، تہذیبوں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ احادیث میں جس دجال کا ذکر ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ خود شیطان ہے۔ آخری زمانے میں دھوکہ پھیلاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ آخر کار شکست کھائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھوکے کو پوشیدہ نہیں رہنے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نشانیاں بیان فرمائیں جن سے اسے پہچانا جا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی صرف ایک نشانی بیان نہیں فرمائی بلکہ کئی نشانیاں بیان فرمائیں۔ اپنی تعلیمات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد غیر معمولی نشانیاں بیان فرمائیں جو ہمیں دھوکے کے اس دور کو پہچاننے میں مدد دیں۔ ان میں سب سے زیادہ چونکانے والی بات وہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا گدھا کہا۔ یہ زمین پر ناقابل یقین رفتار سے سفر کرے گا، یہ آگ کھائے گا، یہ لوگوں کو اپنے پیٹ میں لے جائے گا، یہ روانگیوں کا اعلان کرے گا، یہ وہ مسافتیں گھنٹوں میں طے کرے گا
जो कभी महीनों में तय होती थीं। सदियों तक ये बयानात पुरअसरार लगते रहे, लेकिन आज ये कुछ बहुत मानूस सी चीज से मुशाबा लगते हैं। ट्रेनें, बहरी जहाज, हवाई जहाज, वो मशीनें जो लोगों को दुनिया भर में ले जाती हैं। एक और हदीस में दज्जाल की एक अहम निशानी बयान हुई है। वो ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करेगा। वो सलीब के जरिए निजात के अकीदे को फरोग देगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसीह आएंगे और सलीब को तोड़ देंगे। इसका मतलब लकड़ी तोड़ना नहीं, बल्कि इसका मतलब है बातिल अकीदे को शिकस्त देना। क्योंकि इंसानी तारीख का सबसे बड़ा धोखा यह है कि एक इंसान को अल्लाह के दर्जे तक बुलंद किया जाए, आसमान करीब है कि फट पड़े इस पर, जमीन शक हो जाए और पहाड़ गिर पड़े इस बात पर कि वो रहमान के लिए औलाद साबित करें। ये अकीदा किताबों, तबलीग, इदारों और इक्तदार के जरिए फैलेगा। एक आंख अंधी, दूसरी आंख ताकतवर, रूहानी तौर पर अंधा, मादी तौर पर शानदार। कुरान यजूज व माजूज के ज़हूर की भी पेशीनगोई करता है, यहां तक कि जब यजूज व माजूज खोल दिए जाएंगे, वो हर बुलंदी से निकल कर दौड़ेंगे। उनका नाम लफ्ज अजीज से जुड़ा है, जिसका मतलब है आग। वो आग के इस्तेमाल में माहिर हो जाएंगे। उनके बहरी जहाज आग पर चलेंगे, उनकी ट्रेनें आग पर चलेंगी, उनकी मशीनें आग पर चलेंगी, उनकी जंगें आग से लड़ी जाएंगी। वो हर बुलंदी, हर समंदर, हर पहाड़, हर आसमान पर गालिब आ जाएंगे। ये निशानियां वाज़े तौर पर इशारा करती हैं जदीद यूरोपी ताकतों और मगरबी अक़वाम की तरफ। कुछ अहादीस कहती हैं कि यजूज व माजूज दुनिया पर गलबा पाएंगे, दीगर रिवायात कहती हैं कि ईसाई दुनिया पर गालिब आएंगे, और दीगर अहादीस दज्जाल के असर व रसूख को पूरी जमीन पर फैलता बयान करती हैं। बज़ाहिर ये पेशीन गोइयां मुतजाद लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ही दौर के मुख्तलिफ पहलुओं को बयान कर रही हैं। यजूज व माजूज आलमी सियासी और फौजी ताकत की अलामत हैं। दज्जाल इस फरेब के निज़ाम की अलामत है जो ज़हनों और अकायद को कंट्रोल करता है। और ईसाई पादरी, सलीब, मरकजी अकीदे के अक़वाम में फैलाव की अलामत हैं। 3 फरेब, 3 कुव्वतें, लेकिन हकीकत में वो सब एक ही आलमी निज़ाम में काम कर रही हैं। मुख्तलिफ किरदार, मुख्तलिफ रूप, एक ही निज़ाम। और जब ये निशानियां दुनिया भर में जाहिर हों, तो सवाल ये बनता है कि बनी नौए इंसान ऐसी आजमाइश से खुद को कैसे बचाए। नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को बगैर रहनुमाई के नहीं छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक हिफाजत अता की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरतुल कहफ की इब्तिदाई 10 आयात और आखिरी 10 आयात पढ़े, वो दज्जाल की आजमाइश से महफूज रहेगा। लेकिन जब हम इन आयात का जायजा लेते हैं तो एक हैरानकुन बात सामने आती है। इस सूरत में दज्जाल का नाम कहीं मज़कूर नहीं। फिर भी यह सूरत उन्हीं कुव्वतों को बयान करती है जो उसके दौर को तश्कील देंगी। इब्तिदाई आयात एक ऐसी कौम को खबरदार करती हैं जो कहती है, अल्लाह ने बेटा बनाया, एक अकीदा जो अक़वाम में फैला और ईसाई दुनिया की पहचान बन गया। आखिरी आयात एक और कौम को बयान करती हैं, एक ऐसी तहजीब जो मादी तरक्की में डूबी हुई हो, ईजाद करना, दरियाफ्त करना, कुदरत की कुव्वतों पर महारत हासिल करना। फिर भी ये यकीन रखती हो कि वो कायनात के असरार को खोल सकती है। 2 खुसूसियात, दीनी बिगाड़ और मादी तसल्लुत, मिलकर ये मगरिब की जदीद ईसाई अक़वाम को बयान करती हैं। और यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन आयात की तिलावत मोमिनों को दज्जाल की आजमाइश से बचाएगी।
क्योंकि सूरतुल कहफ इन्हीं ख्यालात, इन अज़ाइम और उस असर और रसूख को बेनकाब करती है जो दज्जाल के दौर को ढालेगी। और जैसे जैसे ये कुव्वतें उभरती हैं, दुनिया एक पुराशूब दौर में दाखिल होती है। कुरान आलमी इस्तिराब के एक दौर की भी पेशीनगोई करता है। अक़वाम समंदर की लहरों की तरह टकराएंगी, तनाज़ियात शिद्दत इख्तियार करेंगे, मजहबी झगड़े बढ़ते जाएंगे, नफरत और तफरीका पूरी दुनिया में फैलेगा। जब ये अफरा तफरी अपनी इंतहा को पहुंचेगी तो अल्लाह एक मुस्लिह को उठाएगा। जैसे एक नफीर नवाज अपने साज में फूंक मारता है, अल्लाह अपना पैगाम अपने रसूल के दिल में डाल देगा और इस पुकार से हक दोबारा लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देगा। मसीह दज्जाल को लश्करों से नहीं शिकस्त देंगे, वो अक़वाम को ताकत से नहीं फतह करेंगे, क्योंकि पेशीन गोइयों में बयान करदा ताकतें इतनी अजीम हैं कि कोई भी कौम इन्हें जंग में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बल्कि मसीह अपने सबसे बड़े हथियार की तरफ रुजू करेंगे, दुआ हक और ईमान की तजदीद के जरिए वो धोखे को बेनकाब करेंगे और दीन की खालिस समझ को बहाल करेंगे। वो बातिल अकायद को बेनकाब करेंगे, वो इन गलत फहमियों को दूर करेंगे जो दुनिया भर में फैली हैं, क्योंकि दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार धोखा है और जब हक वाज़े हो जाए तो धोखा जिंदा नहीं रह सकता। सदियों से लोग एक अफरियत का इंतजार करते आए हैं, एक ऐसे वाहिद इंसान का जो एक दिन जाहिर हो और दुनिया को फरेब दे। दज्जाल महज एक शख्स नहीं, ये एक अजीम निजाम है, एक ऐसा दौर जहां मादी ताकत गालिब हो, जहां हक धुंधला हो जाए और जहां बनी नौए इंसान को पहले से कहीं ज्यादा आजमाया जाए। सवाल सिर्फ ये नहीं कि दज्जाल कौन है, सवाल ये है कि क्या हम इसके दौर में जी रहे हैं और क्या हम हक को पहचान पाएंगे जब वो जाहिर हो। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों को ये तालीम दी कि वो अल्लाह से दज्जाल की आजमाइश से पनाह मांगे